نہیں ہے کہ الحمدللہ ہم نے ہر فورم پر کوشش کی ہے، ہم نے کورسپونڈنس کی ہے، گورنمنٹ تک اپنے ایشوز پہنچائے ہیں، ہم نے پریس کانفرنسز کی ہیں، آپ میڈیا کے تھرو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے تھرو ہم نے اپنے مسائل پہنچائے ہیں اور کسی حد تک ہم نے احتجاج کا راستہ بھی اختیار کیا ہے۔ لیکن جو اس وقت متضاد خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ جناب جس طرح پرسوں کی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تجویز یہ ہے کہ ہم 8ویں سے لے کر 12ویں کلاس تک گریجولی ہم اس کو اسکول کو کھولنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ 8ویں سے لے کر 12ویں تک کھولیں گے تو اس سے کیا ہے کہ جو نچلی کلاسز ہیں، نچلے اسکول ہیں، وہ تو کلیپس ہو گئے ہیں۔ ایک تو پہلی 6 ماہ ان کو ہو گئے ہیں، دوسرا اور اگر ان کو آپ مزید بند رکھتے ہیں تو پھر ان تعلیمی اداروں کا وجود خطرے سے دوچار ہو جائے گا، یہ ادارے بند ہو جائیں گے۔ اور اس میں پڑھانے والا جو زیادہ تر جو ہمارا سٹاف ہے وہ اس پرائمری کلاس 6 یا پرائمری سے نیچے کی کلاسز میں ہوتا ہے، اور تقریباً 12 لاکھ اساتذہ کا روزگار اس سے وابستہ ہے۔ 70% ادارے ہمارے جو ہیں وہ ان کلاسز سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر یہ فیصلہ، اس لیے ہم آج آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے اپنی آواز کو حکمرانوں تک پہنچائیں کہ تاکہ 7 ستمبر کو جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے بین الصوبائی وزراء کانفرنس کے اندر، اس میں ہم تھوڑا سا دباؤ ڈال سکیں آپ کی وساطت سے کہ جی ہماری یہ گریونسز ہیں اور تعلیمی ادارے جو ہیں وہ فی الفور کھولے جائیں، سارے کھولے جائیں، لیکن ایس او پیز کے ساتھ۔ بڑا اچھا سوال ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ ہم اب تک جو ہے جو حکومت پاکستان نے تمام پرائیویٹ اسکولوں کو جس کا پابند کیا تھا کہ 20% ہم اپنی فی میں ہر بچے کو آف دے رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کا اناؤنس شدہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہر اسکول، پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ اپنے طور پہ جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے والدین کسی مشکل کے اندر ہیں، وہ اس سے زیادہ ریلیف الحمدللہ دے رہے ہیں۔ اور ایک انہوں نے سوال کیا تھا کہ جی فی جو ہے نا وہ 80% آ رہی ہے۔ بیسک یہ ایک جو ہے نا وہ ایسا رومر ہے کہ جو پھیلایا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، کہ ظاہر ہے لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوا ہے ہم سمجھتے اس پورے دورانیے میں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم اکثر جب بھی کوئی پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس 0.5% اسکولوں کی بات کرتے ہیں اور 99.5% اسکولوں کو بھول جاتے ہیں جن کی 3000 سے بھی نیچے ہے یا 3000 تک ہے، وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے اور ان کے پیرنٹس بھی فیس نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے آپ کے ساتھ سارے موصوف موجود ہیں، کوئی موصوفہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے؟ جی آپ کی بات ٹھیک ہے، پہلے میں جواب دے دوں کہ جی ہماری خواتین کی نمائندگی نہیں، ہماری یہ ماشاءاللہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں اور کثیر تعداد میں ہماری بہنیں یہاں تشریف فرما ہیں، وہ انہی کے حکم سے، ہم انہی کی مشاورت سے آج کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سٹیج پہ نہیں آنا چاہتے، خود ہی وہ آنا چاہتے تھے، ریلیکٹنٹ تھے، تو اس لیے ہم نے انہیں اس سے ایگزمپٹ کر دیا۔ دوسری بات ہے کہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب بھی تعلیمی اداروں کی بات آتی ہے تو ہمیں ایس او پیز یاد آتے ہیں، ہمیں جناب ہوتا ہے کہ بچوں کی زندگیوں کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں، سیاحتی مراکز ہیں وہاں پر لوگوں کے رش ہیں، ہجوم ہے، ریسٹورنٹس میں چلے جائیں آپ، اور بے شمار ایسے مقامات ہیں جہاں پر بچوں کا ہجوم ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ تو حکومت نے جو کہا ہے کہ اس وقت جو ایس او پیز ہیں تو انہوں نے کہا 20 اسٹوڈنٹس اس کو ہم لے کے چلیں گے، 20 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوگی، تو ہم اس کو شفٹوں میں لے کے انشاءاللہ تعالی چلیں گے۔ بہرحال ایک بات میں ضرور آپ سے شیئر کروں کہ اس وقت جو مین رکاوٹ ہے، ہنڈرس ہے نا ہمارے سامنے، وہ ہے گورنمنٹ کے پبلک سکول، کیونکہ ان کے تیاریاں نہیں ہیں، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں۔
उन्होंने बाकायदा कह दिया कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, कि हमारे पास इवन कि हम साबुन भी बच्चों के हाथ धोने के लिए रखें अदारों के पास, हमारे पास फ़ंड नहीं है। बलूचिस्तान ने इसी तरह, क्योंकि NCOC के इजलास में जाने का इतफाक़ हुआ हमें, डॉक्टर अफजल बाबर साहब भी वहाँ मौजूद थे और हम भी वहाँ पे मौजूद थे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। 7 अरब फ़ंड गवर्नमेंट पंजाब को चाहिए एंड दे डोंट हैव एनी अमाउंट। जनाब ने सवाल किया है बच्चों के वालिदैन की तरफ से कि ये मुतालबा क्यों नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी तंजीम वालिदैन की इस तरह की एक्टिव नहीं है कि जो इस किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड कर सके। तो सोशल मीडिया पे बेशुमार दफ़ा हमने देखा है, बेशुमार पोस्ट आई हुई है, वालिदैन मतलब अब तो नक्को नाक हो चुके हैं बच्चों से और कह रहे हैं खुदा को वास्ते गवर्नमेंट स्कूल खोल दे, क्योंकि कोरोना जो है वो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया और छोटे बच्चों में तो ना होने के बराबर है। उससे पहले क्या सवाल था? टीचर्स को तंग फारिग, अच्छा देखिए तो बड़े लेवल पे टीचर्स तो फारिग जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्होंने टीचर्स को फारिग नहीं किया, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो बुरहान आया है, इस बुरहान की वजह से बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान भर में बहुत सारे तालीमी इदारे बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जो अपने अखराजात मीट नहीं कर सकते थे, जो अपने रेंट नहीं दे सकते थे बिल्डिंग का, जो सैलरीज नहीं दे सकते थे। अब अगर वो स्कूल ही बंद हो गया है तो ज़ाहिर है कि उनका साथ भी वो कहाँ से उनको सैलरी देते, उनके साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन जो स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मोस्टली उनका स्टाफ जो है वो अपने स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस भी उनकी जा रही हैं, अपने स्टाफ को सैलरीज भी दे रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सिर्फ इस वजह से आ रहा है कि 100% जो फी रिकवरी है वो नहीं हो पा रही। अभी मेरे भाई ने कहा कि 80% हो रही है, सर 25 to 30% भी रिकवरी फीस की नहीं हो रही। और बहुत सारे वालिदैन अब इस उम्मीद पर हैं कि स्कूल खुलेगी तो हम दूसरे स्कूल में 6 महीने की फीस मार के बच्चा लेके जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि स्कूलिंग सर्टिफिकेट के बगैर उनको दाखिल मुमकिन नहीं होगा। स्कूलिंग सर्टिफिकेट भी हमने भी अपने भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कि हमने स्कूलिंग सर्टिफिकेट के बगैर किसी स्कूल में दाखिल बच्चे को नहीं होगा। अगर भाई नासिर भाई आप दोनों से जवाब दीजिएगा कि आपकी एसोसिएशन में ये जो सारे मालिकान बैठे हुए सब बैठे, कितने % आप लोगों ने जो बच्चों को जो है ना ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की है? 100%। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अब्दुल्ला साहब ने फरमाया है कि जो स्कूल एग्जिस्ट करते हैं इस वक्त वहाँ 100% जो स्कूल हैं उन्होंने कोशिश की है अर्बन एरिया के अंदर कि वो ऑनलाइन क्लासेस को इजरा करें। अच्छा देखिए, ये कोई आसान बात नहीं थी ना बच्चों के लिए ना टीचर के लिए, क्योंकि इससे पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का नहीं था, ना कोई ऐसा माहौल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हर जो है वो थ्रेड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो असातिज़ा हैं उन्होंने बड़ी मेहनत से और मैं समझता हूँ बड़े विजडम के साथ इस दौरान बच्चों को मसरूफ़ भी रखा है। और 100% एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन तो मुमकिन नहीं थी, लेकिन भरपूर कोशिश की है कि बच्चों को मसरूफ़ भी रखा जाए और उनकी जो है वो डेवलपमेंट के अंदर भी जो एजुकेशन का जो अमल दखल है उसको वो जारी और सारी रखा है। 2010 से पहले मुशर्रफ दौर में रहमान साहब ने HEC में होते हुए पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज को जो है वो फाउंड किया था कि वो अपना LMS सिस्टम जो है उसको लॉन्च करें, और उसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है साथ ग्राउंड रियलिटी जो भी देखें कि आपका वो पब्लिक सेक्टर, जिस तरह अब्रार साहब ने कहा कि NCOC के अंदर जो है वो आपकी 90% सूबे कह रहे हैं कि हमें मास्क प्रोवाइड करने के लिए जो है वो वसाइल नहीं दिए जा रहे। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू की एक से लेकर जहां तक का वो इदारा है
ये इतना मुश्किल और कंपटीशन का कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर के हवाले से। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जितने स्कूलों ने भी हमारे यहाँ जो है वो 20, 25 या 30% फीस इकट्ठी की है, जिससे उन्होंने किराया दिया है या अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ी है, वो हमारा बेहतरीन ऑनलाइन सिस्टम और वालदैन नहीं हो सकती है। हमारे यहाँ ऐसा कोई केस नहीं आया कि एक टीचर आपने अपॉइंट की है तो वो डिलीवर नहीं कर पा रही। हाँ ये जरूर है, और ये बात मेरा ख्याल है मैं अपने मीडिया के दोस्तों की वसादत से चाहूंगा कि इसको ज्यादा हाईलाइट होना चाहिए कि तीन नताज दे रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर, उनके असातिज़ा हैं, वो 5वीं का रिजल्ट हो, वो 8वीं का हो, वो मैट्रिक का हो, वो कॉलेज का हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट सेक्टर ने क्वालिटी के ऊपर नाम पहले कंप्रोमाइज किए हैं, आप कर रहे हैं, और परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक जुमला सिर्फ इसमें कंक्लूड करता हूँ, फिर बाकी दूसरे में बात। बच्चों को प्रमोट करना है 2021 में तो किस लिए आप पे करोगे? 2020 में तो आपने ऐसा एक लूला लंगड़ा प्रोग्राम प्रमोशन का दे दिया, वो अलग बात। नहीं तो 520 में से 524 नंबर लेने वाले बच्चे जो है वो अगर कोर्ट में चले जाते तो आपका ये प्रमोशन का फार्मूला जो है ये पूरी दुनिया के अंदर हमें बदनाम कर देता। ओ लेवल से ज्यादा खतरनाक था। तो अब हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी अवेयरनेस है। जहाँ तक आपने MOUs का जिक्र किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एसोसिएशन ने मुख्तलिफ जिन लोगों के साथ भी MOUs वो साइन किए हैं उनको पूरी तरह से ऑनर किया है, और तमाम लोगों को जो मुस्तहिक लोग थे उसमें उनको पूरी तरह से रिलीफ दिया गया है। तो ये कहना कि जी ऐसा नहीं है ये गलत है। और दूसरा मैं ये कहूँ कि ये हमारी तरफ से एक उन लोगों के लिए गिफ्ट होता है कि जी हम उन लोगों को ये रिलीफ देते हैं कि किसी एक खास इदारे या उसके लिए नहीं होता कि जी हम बाकी लोगों को इस हवाले से पूरा प्रमोट करते हैं और इसमें एक चीज़ जो है ना, एक बात आपका सवाल है, इसमें एक चीज़ है जी कि मेरा ख्याल है कि साथी बनने में कम खसूसी मेरे मान है, और कोई ऐसा स्कूल में जहाँ किसी हमारे साथी भाई के बच्चे पढ़ते हो तो उसको रिलीफ ना मिलाओ, चाहे MOU हुआ हो या ना हो। बहुत सारे आपके साथी भाई इसके गवाह हैं, किसी को नहीं मिल रहा तो जरूर आपने कहा है कि आप जो वालिदैन फीस दे सके हैं उनको रिलीफ दिया, तो एक दो स्कूलों के हमें भी नाम बताए, हमें भी पता चले कि स्कूल ने रिलीफ दिया। मेरे पास तो पूरा एरिया पड़ा है जहाँ पे बच्चों की फीसें नहीं दी गई, उनको ऑफर भी नहीं दिया गया। अच्छा, आप असल में रिलीफ का भी एक मसला है ना, ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो रिलीफ गवर्नमेंट का रिलीफ दिया, फीस प्रॉपर जी 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 मैम, देखिए यहाँ जो ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं और यहाँ ये सब जो है ना स्कूल और कॉलेज वाले हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी इदारा ऐसा देखिए जब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 20%, मैंने आपसे कहा आपने कहा किसी एक इदारे का नाम बता दें। मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हम हमारी एसोसिएशन से वाबस्ता, हमारी जैक से वाबस्ता, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई सारे दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, 20% सब दे रहे हैं। दिया। और मैंने आपको बताया है कि इससे जब भी आगे इस दौरान जो है ये जो पैंडेमिक हमारी पोजीशन है, इस दौरान जब भी प्रेस ने बात की है हमने उनकी ज्यादा से ज्यादा उनको रिलीफ दिया, गवर्नमेंट के अनाउंस करने से भी ज्यादा दिया हुआ है। आप एक स्कूल की बात करें, यहाँ मौजूद सारे स्कूल इसकी गवाही देंगे कि हम सब ने दिया हुआ है। एक मिनट जी, मेरा ख्याल है कि ये सवालों का ना खत्म होने वाला सिलसिला है। स्कूल खोलने पे रहे, स्कूल खोलने सर स्कूल खोलने निकल छोटे एक करके आते हैं। सिखाने का अलंबरदार कहा जाता है, एक उस्ताद को किसी भी कौम को तहजीब सिखाने का अलंबरदार कहा जाता है। सर मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट होता है। अब आप 15 तारीख को एहतजाज करेंगे टीचरों के पार्लियामेंट के सामने, क्या आप उससे पहले कोई कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ताकि हुकूमत अलर्ट हो जाए, आपकी बात मान लें? जी मैंने अर्ज किया ना कि ये उसी का हिस्सा, ये कॉन्फ्रेंस ये उसी का हिस्सा है आज की कॉन्फ्रेंस, ठीक है। हम पुरअमन तरीके से यहाँ बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपकी वसातत से हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि 7 सितंबर को जो इजलास होने जा रहा है उसमें कंसिडर किया जाए हमारे तकरीबन 15 सितंबर को तमाम के तमाम तालीमी इदारे ऑपरेशनल होने चाहिए। दूसरी कोई और सवाल मुझे दीजिए। अगर आप
सर ऐसा है कि ये ऑर्डिनेंस है हुकूमत पंजाब का, और पीरा का भी एक नोटिफिकेशन बाकायदा है। पीरा ने जो हद मुकर्रर की है 5000 से नीचे अबव है, तो उनको 20% देनी है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया है वो तो उन्होंने कहा कि जी जो भी फीस लेवल है उस पर 20% डिस्काउंट तकरीबन तमाम तालीमी इदारे दे रहे हैं। अगर कहीं आपको कोई शिकायत है, कोई अदारा नहीं दे रहा, तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मौजूद है, एसोसिएशन से भी रब्ता कर सकते हैं। जी एलीट स्कूल भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं एसोसिएशन। हमारे गुफरान अलाई साहब आज के इस हिस्सा हैं इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बल्कि उनके नुमाइंदे बैठे हैं। बल्कि राजा अब्दुल वहीद खान साहब जनरल सेक्रेटरी PSA आए हुए हैं, लेट आया था, थोड़े से लेट आया। उनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब्दुल वहीद खान साहब, असल में तमाम एसोसिएशन जो हैं वो ठीक है मेरे उसमें हर किस्म की नुमाइंदगी होती है जी। कुछ एलीट क्लास स्कूल ऐसे हैं जिनको एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लेकिन मोस्टली जो हैं एसोसिएशन से बिल्कुल उनके हिस्सा हैं। और अब ज़ाहिर है कि हर जैसे अब यहाँ ज़्यादातर जो है नुमाइंदगी 99.95% जैसे मलिक साहब ने भी अर्ज़ की है कि उनकी नुमाइंदगी हम लोग करते हैं। हमारा मुतालबा क्या है इस वक्त, पहले इससे कोरोना से पहले फिगर आ रहा था 2.5 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं पूरे पाकिस्तान में। अब इस ये जो वबा गुजरी है, इस अजाब के बाद 15 सितंबर के बाद जो डाटा आएगा, हमारी सरकारी डाटा आएगा, उसके मुताबिक जो तादाद होगी वो मेरे ख्याल है खौफनाक हद तक बढ़ चुकी होगी। और बेरोज़गारी का लेवल वो कहाँ पे होगा, वो मतलब हम लोग उस चीज़ को भी सोच रहे हैं। हम लोग वो भी सबसे बड़ा नुकसान जो है बच्चों की तालीम का हो रहा है। हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम चीज़ वो है कि बच्चों की तालीम का नुकसान, उसका किसी तरीके से हम किस तरह ज़ाला करेंगे। 6 महीने 7 महीने से बच्चे आउट ऑफ टच है स्टडीज़ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम साथियों का, और ख़ास तौर पे इनाम कुरैशी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी याद साहब तशरीफ़ फरमा हुए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। वबारिक वसल्लिम सल्ली अलैहि अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। ऐ रब्बुल आलमीन, हमारी गलतियाँ हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें तालीम के लिए खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम, इसमें आज के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य बने हैं तालीम के लिए हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने का सबब बन रहे हमारे साथी हज़रात, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता